Morning, fellows. Here I am Mayank once again with you guys with the fresh new chapter of English grammar. Today we are gonna know something about voice, that is watch. वॉइस इसको हम लोग हिंदी में वाच्य भी बोलते हैं. डियर वंस, वॉइस जनरली लोग इससे मीनिंग निकालते हैं आवाज, बोली, जो हम लोग बोलते हैं. बोलने का ढंग होता है हम लोगों का अलग अलग. दिस इज वॉइस. वी आर गोना एक्सप्लेन इट टुगेदर. In grammar, the voice of a word describes the relationship between the action and the person who is doing any action. Okay? Voice shows relation between action and the participants identified by its arguments. Voice shows relation between the action that is the verb, the action that we perform, and the participants, that is the person who are included in the action. Identified by its arguments. उनके बोलने से जो भी पता चलता है हमको, ये voice कहलाता है. We will further explain it. Voice has been classified into two subtypes. Two types. First, active voice, and second is passive voice. Voice is further classified into two types. First is active voice and second is passive voice. Now we will explain active and passive individually. Let's see this. First type of voice, that is active. Active voice. The meaning of active, you can exclude it. Active, that is the person in act, जो कि काम करता है. In act, active. काम कौन सा करता है, इस चीज को समझने के लिए वी हैव टू गो बिहाइंड. हम लोगों ने पढ़ा है ग्रामर में इन अर्ली डेज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. I want to recap once again subject and object. Subject, जैसे कि मैंने बताया है कि doer of the verb is subject. Doer मतलब करने वाला, जो भी किसी एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. And the effect of action falls on the person or the thing, that is object. और काम करने का असर जिस पे पड़े वह ऑब्जेक्ट कहलाता है. इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे. राम eats a mango. This is a very simple example. Ram eats a mango. Ram एक आम खाता है. यहाँ here the work is going of eating. Eating का काम हो रहा है. This is verb undoubtedly. And who is doing the verb of eating? Work of eating. खाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? Ram. Then Ram will be the subject. Clear? Subject. Doer of the verb is subject. यहाँ खाने का काम राम कर रहा है इसलिए राम सब्जेक्ट. क्या खा रहा है, खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है. मैंगो विल बी ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑब्जेक्ट. क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. डियर वंस, टू अंडरस्टैंड वॉइस we have to understand clearly subject and object. That's why I have given this example. Now come to the real topic, that is active voice. एक्टिव मीन्स इन एक्ट, काम में. कोई पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है काम में, बिल्कुल इंपॉर्टेंटली, चीफली.
एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हेन इन अ सेंटेंस, व्हेन इन अ सेंटेंस subject is given प्रेफरेंस, मतलब सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए, ठीक है। देन द वर्ब विल बी इन एक्टिव वॉइस। This is active voice. When in a sentence subject, that is doer of the verb, is given preference, the verb will be in active voice. First of all, I am gonna explain active and passive both. Then I will give a common example so that you can clearly understand both the voice in one time. Second, passive. Passive voice. Passive, as the name clears, passive, inside. But inside, अलग अलग, inside, मतलब not in important और chief role, side actor, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं in a sentence the object and the action, when in a sentence object and the action is given importance, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे पैसिव वॉइस, मतलब जिसमें सब्जेक्ट को छोड़ के ऑब्जेक्ट पे और एक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाए, दैट इज इसका उल्टा, ठीक है। उसको हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू एक्टिव एंड पैसिव दोनों एक ही बार में क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो याद करने में अगर दिक्कत हो तो यू कैन नोट डाउन दिस। When in a sentence subject is given preference, the verb will be in active voice. Passive voice, when in a sentence object and the action is given importance, that is passive voice. Clear है? Okay, now come to the example. देखते हैं एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से दोनों एक्टिव एंड पैसिव विल बी क्लियर। द कैट एट द माउस। द कैट एट द माउस, दिस इज वेरी जनरल सिंपल सेंटेंस। बिल्ली ने चूहे को खाया, सिंपल सेंटेंस है। अब we have to identify what is subject, where is subject and where is object. Dear ones, as I told earlier, doer of the verb, काम को करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग काम को फाइंड करते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? एट, मतलब खाने का काम हो रहा है। दिस इज वर्ब, वेरी क्लियर, वी कैन राइट डाउन वर्ब अंडर इट। ओके, नाउ जब वर्ब क्लियर हो गया है, देन वी हैव टू फाइंड हु इज डूइंग द एक्शन, काम कौन कर रहा है। द कैट एट द माउस, बिल्ली ने चूहे को खाया, खाने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। ओके, द कैट विल बी सब्जेक्ट, क्लियर है। अब क्या खाया? द माउस, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है, ये सेंटेंस जो आपका जनरल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है। कैट एट माउस, बिल्ली ने चूहे को खाया, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट विल बी इन एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस होगा। कौन सा वॉइस होगा ये? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव हम लोग देखते हैं। अभी हम रूल नहीं बता रहे हैं, जस्ट इसका पैसिव बना के दिखा रहे हैं आपको। पैसिव हो जाएगा द माउस was eaten by the cat. The mouse was eaten by the cat. चूहा बिल्ली के द्वारा खाया गया। इससे पहला रूल आप लोगों को क्लियर हो जाता है, वो मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। द माउस वाज ईटन बाय द कैट, यहाँ पे द माउस जो कि प्रीवियस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में हम लोगों ने उसको इंपॉर्टेंस दिया है
और उसको पहले लाया है। तो मैंने अभी प्रीवियस पेज पे लिखाया है आपको डिस्क्रिप्शन कि पैसिव वॉइस उसको कहेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट और एक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाए। यहाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया। दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव फॉर्म। There are many examples. You can find it in books you have. I think, guys, this is enough for today because voice is a long chapter and it has many rules. So you have to understand this voice very slowly and easily. That's why I think this is enough for today. In the next class, I'm going to explain general rules for making active to passive. Till then, study hard, live in your houses, and be safe. Thank you.